I just invite you to the point of counseling to every person's in life. जब किसी बच्चे की जन्म हो जाती है, when the entire family becomes happy, and when the child cries because for the first time the child is taking out the carbon dioxide outside and inhaling the oxygen, which is very painful, क्योंकि तब तक बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड से उसकी मदर से कनेक्टेड ऑक्सीजन जा रहा था. दैट टाइम फॉर अ चेंज ही इज टेकिंग इट अलोन. इट इज अ पेनफुल एक्सरसाइज. एंड देयर when the child is put to the breast of the mother, when the child is put to the hands of the mother, the first mental health or well-being counseling session starts. Now it doesn't stop there, it grows. The child gets into an infancy. जब बच्चा पहली बार मूव करना चलता है, when the child starts crawling, and when the child falls, there is a mental health counseling by the family members where they say, कुछ नहीं हुआ बेटा, खड़े हो जाओ. When the child grows further into childhood, where we talk about child sexual abuse or child neglect or violence against children, there needs to be somebody to support, to counsel that child. The counseling session doesn't end there. उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं यूथ को बढ़कर अपने फैमिली लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, when there is a problem, the counseling words of the eldest in the family works. कहते हैं चुप रहो करके शब्द जो होती है बड़ों की, बुजुर्गों की, घर के, वहां पर मैरिड कपल के बीच में जो सेटलिंग डाउन की जो प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो चुप रहो करके जो शब्द निकलता है, दैट इज अगेन ए काउंसलिंग सेशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज every moment of your life is one or the other way connected to counseling. Finally, I just want to draw your attention to a very important thing. When my wife was dying on August 18, 2024, my friend who studied with me MSW way back in 1988 at Indore, he called me up from Australia, where he is a very senior case worker. He told, George, sit with your wife who is dying. I never knew that I can have the mental health of a dying wife as well to a well-being. मुझे कहा गया आप उनके साथ बैठिए. You sit with your children, with your wife. Tell her what you have in mind for her. When she is not going to be there within a couple of hours, when she is not going to be there in a 10 minutes time, tell her you are there with her. Your children are there with her. What are you planning for her? What are you planning for her? There will be no day that she will be missing you. So those kind of soothing words are to be inflicted into the ears of the person who is dying, which was painful, which was tearful, which was ununderstandable to me that time. But I did it. And I did it. मैं जब उस प्रकार के काम किया, मेरे अंदर ही अंदर एक मुझे फीलिंग था, मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा काउंसलिंग उस समय किया जब मेरे वाइफ के डेथ के समय, वो डेथ के समय जाते जाते उसने 2 आंसू निकाल के वो चले गए हमको बोल के कि आई एम हैप्पी. इट वॉज अ हैप्पीनेस दैट शी कुड टेल अस. दिस इज व्हाट इज काउंसलिंग. टीनेजर और एडोलेसेंस, हम जो बच्चों की बात करते हैं, दे आर एडोलेसेंट, किशोर अवस्था में है. मैंने आपको हर एरिया के लोगों को बोला.
उनकी एक खासियत ये है, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेस एंड स्टोर्म। अभी कुछ कहेगा, उसके बाद कुछ कहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। हम स्कूल में जाके बच्चों से बात करते हैं, वहां पर बताते जितनी प्रकार की एनर्जी उसके अंदर है, जितनी प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर है, उस ऊर्जा को वो दिखाना चाहते हैं। दे आर एक्सप्लोरेटिव, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे वांट टू गो आउटसाइड योर माइंड। एज अ रिजल्ट दे गेट इनटू प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नाउ हमारा ये विचार है, somebody can be there to page down my this one। हाँ, लोग ये कहते हैं अगर सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम है उनको यू विल डेवलप सम मेंटल इलनेस। ऐसा नहीं है, एवरीबडी विल डेवलप सम मेंटल। हम लोग जो अपना पढ़ते समय हमारे डॉक्टर्स ने भी हमें कहा है, हम लोग 25% पागल ही है कि नहीं? आपको लगता है कि आप पूर्ण रूप से अगर सही है तो एक बार ताली बजाओ। देयर आर सम पीपल आर देयर, सो सम पीपल आर फुल्ली परफेक्ट, मतलब भगवान की देन है वो लोग। एवरीबडी नहीं, पीपल हु एक्सपीरियंस चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज मे हैव अ रिस्क, दैट्स ऑल। थोड़ा सा हाई रिस्क होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अंदर जनरली जो होता है, जो डिसऑर्डर्स, जो मैंने 4 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर मेरे कलीग उनके साथ गया था, वहां पर भी हमने ये सब देखा। ए चाइल्ड हु इज अब्यूज्ड, निग्लेक्टेड, a victim of violence will have generally an anxiety disorder। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है? किसी घटना के प्रति, किसी इंसिडेंट के प्रति अनवारंटेडली यू commute everything, you collate everything, that you will end up in some kind of a anxiety। हम अपने घर से निकलते हो तो कई बार क्या होता है, कई बार ये सोच आ जाती है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। कहां पे? दरवाजे पे। तो मेनी ऑफ अस गो बैक, मेनी ऑफ अस गो बैक, फिर देखते थे ताला लगा हुआ है ना। सो दैट इज कॉल्ड जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये होता है, मेरे में भी होता है। कई बार मेरे को लगता है कि घर पे गैस बंद तो नहीं किया। अनवारंटेड इंसिडेंट्स बीइंग इनवाइटेड टू गेट इनटू ट्रबल। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज समथिंग दैट एवरीबॉडी फेसेस। आपको आएगा जैसे किसी बंदे से आप अलग हो गए हो, सेपरेट एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सो सोसाइटल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारे हैं। नाउ डिप्रेशन इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। अगर आज आप 10 लोगों को देखेंगे, उसमें से कम 7 लोग आपको ऐसे बैठ के दिखाई देंगे जैसे पूरा दुनिया उसके सिर पे चल रहा था, आज नहीं चल पा रहे। करेक्ट? दैट इज नॉट द थिंग। आई ऑलवेज टेल माई पीपल, गिव ए स्माइल टू समबडी। मैं तो विधान जी को भी देता हूं, विधान जी पर हमेशा देता है, दैट इज अ गुड थिंग। गिव ए स्माइल टू समबडी। किसी को एक स्माइल देने में तुम्हारा कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। Hardly you have to spend 7,800 muscles on your face to give a smile to somebody, जो बाकी लोगों को खुश रखता है। पर हम लोग क्या करते हैं, वो 7,500 के बजाय 35,000 मसल्स खर्च होती है जब आपके अनोयंस और एंगर बढ़ाने के लिए। तब भी हम लोग 35 को पकड़ के बैठते हैं, 7,500 खर्च नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों में से कई लोग मेरी तरफ देख के बैठा होगा, कब तक चलाएंगे भाई साहब इस प्रकार। तीसरी बात उसमें यह है, एक ईटिंग डिसऑर्डर आता है इन बच्चों में। बिकॉज मैं क्विकली जाऊंगा अभी। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? पहले खाना बराबर खाता था, आप और हमारा जैसा नहीं, क्योंकि सुबह की पूरा भूख रह के दोपहर को लंच के लिए भागता है। दैट इज नॉट द थिंग। ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स पहले खाता था, अब नहीं खा रहे। पहले खाते थे, अब नहीं खा रहे। पहले बिल्कुल नहीं खाता था, अब ज्यादा खा रहे। ओके, तो eating disorder is something which troubles, which comes into the mind of any kind of a mental health disorder. Then disassociation. पहले में ज्यादा मिलता था, जुलता था, बात करता था, you used to be with people laughing, like a social being. अब मैं एकदम डिसएसोसिएट कर दिया, मैं अपने आप को दूर कर दिया, अपने आप को सोसाइटी से दूर कर दिया, अपने आप को कम्युनिटी से दूर कर दिया। I come back to a room. I come back to a room, मैं किसी से बात नहीं करता। हमारे आज के दिन कई बच्चों की वही हाल है। They have gone back to their room. When you don't have a meal together today in this
प्रेजेंट टेक्निकली एडवांस्ड वर्ल्ड जहां पर एक खाना एक साथ नहीं खाते एंड यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डेवलप अ मेंटल वेल बीइंग टुडे, इट इज नॉट पॉसिबल. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हैव one meal a day with your siblings and parents and children so that they will remember you. Otherwise disassociation की chances वहां पर ज्यादा है. Then some of the children develop some personality disorders. जिस प्रकार पहले बर्ताव करता था अब नहीं कर रहे. They have become completely annoyed. उनके अंदर एंगर इतना ज्यादा ना होगा. तो एंकर मैनेजमेंट के लिए आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है. ऑल दिस कैन बी कंट्रोल्ड व्हेन वी you and me become a community social worker and have the minimum knowledge of counseling that child.